all the participants of our today's training session, which is a part of USA Certified School Manager Certification Program. And our today's topic is school financial management. Let me just give you a brief introduction. I believe most of you would not know me. Who am I? मेरा नाम मोहम्मद खलीक है, लाहौर का रहने वाला हूं, मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल लाहौर से पढ़ा हूं और कोइंसिडेंटली मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल लाहौर का इनॉग्रल प्रेसिडेंट भी रहा हूं। एफसी कॉलेज से मैं पढ़ा हूं और उसके बाद आई टुक ए डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स फ्रॉम एथाबास्का यूनिवर्सिटी इन कनाडा। 40 साल मुझे हो गए हैं अपनी रोजी रोटी के मामले में काम करते हुए, and I have touched several industries. I have worked for education, for publishing, healthcare, oil and gas, power generation, transmission, distribution, real estate development, industrial services and automation, and telecom, to say a few. There are a couple more. Multiply Edge का मैं board of directors का senior executive member हूं, and I feel honored to be one. जिंदगी में मैंने जो शोबे हैं जिनमें काम किया है, I have worked for strategic planning. I've been an HR director for several organizations. I've been a business development director. I've been a chief operating officer and also chief executive of a couple of companies in my life. To be very specific, Siemens का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो तो ये कंपनी पाकिस्तान से सिर्फ 100 साल पुरानी है। 1847 में बनी थी। This company works in 192 countries with 425,000 employees and with more than $100 billion of revenue. I've spent most part of my professional life with this company. I've been the regional director of Middle East, covering 5 countries while sitting in Dubai. I've been the HR director of Emaar at King Abdullah Economic City in Saudi Arabia. I've been the senior advisor of Ministry of Health in Qatar. And coincidentally, I have been involved, I have designed and conducted leadership development programs for C-suite executive. That means for CEOs, CEOs, CMOs, CHROs, for Siemens through their global learning campus in Australia, in China, in Malaysia, and Singapore. And I was just looking at the top 10 consulting firms of the world, and I saw that McKinsey & Company has actually gone to number 1. They used to be number 2 and 3. The others are Deloitte and KPMG and other companies. And I have the honor of working for McKinsey & Company of USA. And also I have worked at King Abdullah Economic City, as I mentioned earlier. I've been lucky that I have traveled to more than 30 countries in all continents around the world. And I believe that I have seen lots of colors of various nationalities. I am honored that I have been able to work with more than 70 nationalities from around the world during my career. So this is briefly my introduction. Now coming to our today's session, what are the objectives of this session? आप में से भी कुछ ने कुछ चीजें बताई हैं. This might also reiterate that. पहली चीज हम चाहते हैं कि आज के सेशन में हम बेसिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसको अंडरस्टैंड करें. Because most of you are not financial managers. 5-6 अफराद ने अगर अकाउंटिंग पढ़ी भी है, in your current roles, I'm not sure whether you are directly responsible for finance. लेकिन चूंकि हम सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जेनेरिक नहीं सीखना चाहते, all of you are
working for some kind of an educational institution. So I will be focusing on comprehending school financial projections. We'll be talking about managing the school's budget, which was also mentioned by a couple of you, and working with capital and operational expenses. We'll shed some light on that one. And this is the most important part. There are 3 different financial statements. They are normally made in each and every business. Just mention those 3 statements. Whoever wants to, please unmute yourself and share with us if you know the names of those 3 financial statements. Amna, I believe you said that you have also studied accounting in your career. You must be knowing it. Or any other individual who has studied accounting during your student life. Assalamu alaikum. I think I study at the time of my educational period. So I think it's about credit, debit, and revenue expenditure. I'm not sure about it. No worries, no worries. Whatever you have learned or you still remember from the old days, it's fine. Anybody else? Anybody else? Thank you. There are 3 different financial statement types. Please let me know what are those. Assalamu alaikum, sir. Sir, sir, these are balance sheet, income statement. I think so. Super. Am I right? Super. Perfect. These 2 are 100% correct. There's one missing. Balance sheet, income statement. Yes, Usman, please. Yes. उस्मान आप बताना चाहेंगे तीसरी वाली स्टेटमेंट कौन सी है? इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी। जी नहीं, जो 2 स्टेटमेंट्स बताई हैं हमारी बहन ने, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. वी आर मिसिंग वन. व्हाट इज दैट थर्ड वन? ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो। जी, cash flow. Thank you very much. Trial balance is not a financial statement. It is prepared for preparing the statements. So I got all the right answers. 3 statements होती हैं किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस में, और बहुत सारी होती हैं, लेकिन these are the most important one. Income statement, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं. और सादी सी बात ये, इनकम स्टेटमेंट के बारे में आपसे आइंदा कभी पूछे तो ये क्या है, तो क्या लगाया, क्या कमाया और क्या बचाया, ये 3 लफ्ज याद रह जाएंगे जी. क्या लगाया, क्या कमाया और क्या बचाया, दिस इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट. दूसरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट. आपने यकीनन वो हदीस सुनी होगी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन हमसे ये पूछा जाएगा कि माल कहां से लाए और कहां खर्च किया. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ यही है कि माल कहां से आया और कहां खर्च किया. और तीसरी चीज है बैलेंस शीट. आखिरत वाले दिन ये भी हिसाब होगा कि अपनी बैलेंस शीट खुद ही देख लो. इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा. बैलेंस शीट का मतलब है किसका कितना देना है और किससे कितना लेना है, मीजान. तो ये थे 3 स्टेटमेंट्स, इनके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन इससे पहले कि हम क्या लगता है, मेरे जहन में खुद ये सवाल पैदा हुआ कि ये जो आपका सर्टिफिकेशन का ये पूरे का पूरा माशाल्लाह कोर्स चल रहा है, दैट इज अबाउट स्कूल मैनेजर. और मैनेजर का मतलब है वो फर्द जो मैनेज करता है.
तो कोई मेरे साथ शेयर करेगा कि अगर आपको कोई भी चीज मैनेज करने के लिए दी जाए तो व्हाट विल यू डू? एनीथिंग दैट यू आर गिवन टू मैनेज, तो आप किन मराहल से गुजरेंगे या किन स्टेप से गुजरेंगे? व्हाट विल यू डू फर्स्ट एंड देन सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ? एनीबॉडी वॉलंटियर्स? जी, सबा? First, we do planning, Lovely, very good. and then we make objectives. Beautiful. Then proceed. Execution Then period. we do what? Execution period. यानी कि execute करेंगे उसको, Excellent. implement Excellent. करेंगे. Then we implement. Beautiful. Beautiful. Anybody else? Ji Sabha? Sir, I will keep a written record of everything because it's a great responsibility. I will keep the documents very ready. डॉक्यूमेंट वाइज डॉक्यूमेंटेशन मेरी उस पर बहुत तवज्जो होगी, डॉक्यूमेंटेशन मेरी बहुत अच्छी और सारे रिटर्न रिकॉर्ड हो मेरी हर चीज का, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो मैनेजिंग है, किसी तरह की भी। जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो मैं आपको एक तोहफा दे रहा हूं, उसको याद रखिएगा। इट विल हेल्प यू in throughout your life whenever you are given something to manage, and this is a 5P model. The first thing is, whenever you are given a responsibility to manage anything, you predict the future. Think what could happen tomorrow, including pandemic, by the way. ठीक है? तो आप आंखें बंद करके पहले तो सोचें कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, फिर आप मिस्टर गूगल को पूछें कि दुनिया क्या कह रही है कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, और खुसूसन उस फील्ड में जहां मेरी जिम्मेदारी है। तो आज हमसे अपने आप से सवाल करें कि मुस्तकबिल के स्कूल कैसे होंगे, मुस्तकबिल में स्कूलों में क्या होने जा रहा है। आज फिर खबर आ गई है कि स्कूल बंद होने जा रहे हैं। चलें अगर 2 मिनट के लिए हम पेंडेमिक को थोड़ा सा साइड पे कर दें, वरना सारी ये सेशन जो पेंडेमिक ही सेंटर पॉइंट बन जाएगा। सो इट मींस यू नीड टू नो व्हिच मार्केट यू आर इन। क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा प्राइवेट स्कूल हैं। ये तादाद कितनी तेजी के साथ मजीद आगे बढ़ेगी। इनके अंदर आज कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कल कितने पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल जो है उनकी तादाद कम हो रही है और प्राइवेट की बढ़ रही है। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं और प्राइवेट के अंदर जगह नहीं। सो दैट इज व्हाट यू लुक इनटू फ्यूचर। द सेकंड थिंग इज plan your actions. So since let us assume that you are going to open a new school, so you will look at the market, you will predict what the market is going to, how the market is going to behave, and then you will make your plan. मेरा स्कूल कितना बड़ा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, उसकी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, मैं कितनी क्लासेस से शुरू करूं, कौन सा एनकैचमेंट एरिया है, कहाँ स्टूडेंट ज्यादा मिलेंगे, उनकी फीस क्या होनी चाहिए, टीचर्स कहाँ से लेकर आऊंगा, टीचर्स को मैं क्या लर्नर्स कैसी होनी चाहिए, मेरे पास इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए, मेरे पास प्लेइंग ग्राउंड होनी चाहिए नहीं है, हाउ बिग एंड सो ऑन. So this is all about plans. And then, as Sabha rightly said, perform. आपने प्लान कर लिया, then go in the field and do your work, execute, implement. जब आपने कर लिया तो जब आप implement करेंगे, मैदान में उतरेंगे, not everything is going to work the way you planned. इसलिए कि हम खुदा नहीं हैं, हम मुस्तकबिल की हर चीज को 100% जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, प्लान भी 100% नहीं कर सकते, चीजें बदल जाती हैं दरमियान। सो जब आपने परफॉर्म किया तो कुछ चीजें आपने ऐसी की जिससे आपकी तसल्ली तशफ़ी हो गई, बट सम थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क द वे यू एक्चुअली प्लान. सो थिंक, रिव्यू, एनालाइज, रिविजिट and see what worked and what did not work, and particularly what did not work, why, and after that is prepare for the change. So जो भी आपने लर्न किया है अपने इस एनालिसिस से, अपनी स्पॉन्डरिंग से, उसकी बुनियाद के ऊपर now modify your preparations for the future.
और ये साइकिल सारी जिंदगी चलता रहेगा. इट नेवर स्टॉप्स बिकॉज लाइफ डजंट स्टॉप. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. आप लोगों ने बहुत से ट्रेनर से ये बात सुनी होगी. Things are going to be changing all the time. So you have to go through this cycle of predict the future, plan your actions, perform in the field, ponder on outcomes, and prepare for change. इसको याद रखिएगा. It is not only relevant for financial management, it is relevant for any sort of management. अब आ जाइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जिन चीजों का हम एड्रेस करेंगे, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नंबर 1. नंबर 2, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड नंबर 3, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. इन चीजों को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे. पहला सवाल, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल करूं और जो ज्यादा एम्फेसाइज करने वाले अल्फाज हैं उसका मैंने रंग भी बदल दिया है ताकि आपके जहनों में ये अल्फाज बैठ जाएं. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग व्हाट द फाइनेंशियल एक्टिविटीज. तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटी को, पैसे के लेन देन को, खर्च करने को, इनकम को, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को प्लान करना है, उसके मुताबिक ऑर्गेनाइज करना है, उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करनी है टीम को, और फिर जब वो काम कर रहे हो तो कंट्रोल करना है कि क्या चीजें प्लान के मुताबिक ही की जा रही हैं. सो दिस इज इन द सिंपल मोस्ट वर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ये स्लाइड्स आपको सारी मिल जाएंगी. वो लिखने की जरूरत नहीं है. लिखिए तो वो लिखिए, वो सवाल लिखिए अपने पास जो आप एंड ऑफ द सेशन में मुझसे करना चाहते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्या. सबसे पहली बात यह है कि अगर हमने ये दुकान खोल ली है, अब हमने एक स्कूल खोल लिया है, ये खोलने जा रहे हैं, तो वी हैव टू इंश्योर दैट वी हैव एनफ मनी. So ensure adequate supply of funds. जिस भी बिजनेस को करने जाएंगे, स्कूल चलाने जाएंगे, we should have sufficient amount of money in our hand. फिर ये है कि ये पैसे हमारे नहीं हैं. ये पैसे मुझे एज ए स्कूल मैनेजर, आपको एज ए स्कूल मैनेजर किसी ने दिए हैं, इन्वेस्टमेंट की है. और जो इन्वेस्टर है वो ये इंश्योर करना चाहता है कि उसको उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा रिटर्न मिलेगा, जिसको ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. वो अगर एक हो तो वो ओनर कहलाएगा, एक से ज्यादा हो तो शेयर होल्डर्स कहलाएंगे. आप अज्यूम कर लीजिए कि एक स्कूल के अंदर 3-4 अफराद ने इन्वेस्टमेंट की है. उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्ट है वो ये है कि व्हाट रिटर्न शैल आई गेट ऑन माई इन्वेस्टमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को रीजनेबल हेल्दी रिटर्न मिले. एंड द थर्ड थिंग इज टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन. पैसे जाया नहीं करने, पैसों को एहतियात के साथ खर्च करना है. और ये नहीं कि खर्च नहीं करने, जहां खर्च करने की जरूरत है वहां जरूर करने हैं, वरना बिजनेस नहीं चलेगा. आप अगर अच्छे टीचर्स हायर ना करें, अच्छी लर्निंग एड्स ना लें, अच्छा फर्नीचर ना खरीदें, आपके स्कूल के अंदर अच्छे इक्विपमेंट ना हो, तो स्कूल नहीं चलेगा. यू नीड टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन. द लास्ट थिंग इज पैसों को इस तरह खर्च करना है कि जाया ना हो जाए. इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर ऑफ द स्कूल हु इज answerable towards the shareholders to make sure that the investment is safe, it is recoverable. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो 4 कंपोनेंट्स हैं, ये बात आ चुकी है. पहली चीज है टू प्लान. इस पे हम काफी सारी बात करेंगे. उसके बाद जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो व्हाट एवर यू डू टू रिकॉर्ड ऑल दोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. And after that, also analyze
whatever you have done, whether you have done well or not, and then report to the leadership, to the management, to the owners of the company or the school or the franchise, whatever it is, that how well the school is performing. फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोगों ने कहा, बिल्कुल सही कहा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर दो हिस्से हैं, वन इज कॉल्ड बजटिंग एंड द अदर इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। ये लफ्ज बड़े हम मानी हैं, लेकिन इनके दरमियान में बड़ा एक सब्सटेंशियल डिफरेंस। बजट कहते हैं जब किसी काम को शुरू करने से पहले हम ये तखमीना लगाएं, ये अंदाजा करें कि हम इसमें कितने पैसे हमें खर्च करना पड़ेंगे और कितनी कमाई होगी, राइट? अब मुझे आप में से कोई ये बताए कि फोरकास्टिंग क्या है? फोरकास्टिंग बजटिंग से थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज है। कैन एनीवन हेल्प मी, व्हाट इज फोरकास्टिंग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर फोरकास्टिंग भी बेसिकली एक जो है ना वो अंदाजा ही है कि हम फोरकास्ट करते हैं कि हमने जो बजट बनाया है, हमने जो फाइनेंशियल प्लानिंग की है, उसकी फ्यूचरिस्टिक आउटपुट क्या होगी, फ्यूचर में उसके क्या आउटकम्स होंगे। अगर हमने मतलब ये बजट एक बना दिया है तो इस बजट पे फिर हमें कितनी कितनी मतलब जो बजट हमने एलोकेट किया है, क्या उस बजट के सेगमेंट से हमें फ्यूचर में क्या क्या चीज सामने आएगी, फ्यूचर में उसके क्या क्या आउटकम्स होंगे। असल में ये बजटिंग है, मैं आपकी जरा आसान कर देता हूं कि एनीबडी एल्स प्लीज, एनीबडी एल्स लाइक्स टू ऐड? ज़ैनब? सर एक एस्टिमेशन हम लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं फ्यूचर के। जी ठीक हो गया। और कमर साहब? Sir, budgeting is the balance between your income and expenditure, while forecasting is something that you are going to foretell some that could be expected in the future. I mean, what are your requirements that are expected that can be increased in certain period of time and with respect to certain component of the organization. जी माशाल्लाह, आपने जवाब इसका ठीक दिया है with slightly different wording. बेसिकली बजट काम करने से पहले बनाया जाता है। फर्ज करें कि आपने एक साल का बजट बनाया, तो आपने 4 क्वार्टर्स का बजट बनाया, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। Q1 में आपने जो बजट बनाया था, जब भी Q1 खत्म हुआ तो आपके जो रियल नंबर्स हैं वो Q1 के बजट से ज्यादा हैं या कम। तो अब उसको सामने रखते हुए आपने ये फैसला करना है कि Q2, Q3 एंड Q4 यानी क्वार्टर 1 जब खत्म हो गया, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 का आपका जो ओरिजिनल बजट था वही रहेगा या तब्दील हो जाएगा। मोस्टली द नंबर्स चेंज, सो व्हेन यू एडजस्ट द नंबर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फिगर्स ऑफ क्वार्टर 1, दिस इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। ये मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं कि आपने बजट बनाया कि हमारे स्कूल में, आपने एक नया स्कूल खोला है, आपने बजट बनाया कि हमारे स्कूल में हर क्वार्टर में 200 बच्चे जो हैं वो उनका एडमिशन हो जाएगा, राइट? तो आपने 200 200 200 200 4 क्वार्टर के, एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर एक्सपेक्टिंग कि 800 स्टूडेंट्स एनरोल हो जाएंगे। लेकिन पहले केस में हुआ क्या कि क्वार्टर 1 में आपने 200 प्रेडिक्ट किया था, 300 बच्चे माशाल्लाह आ गए, लवली, वी शुड बी हैप्पी, क्लैपिंग। लेकिन क्या हम अपना जो 800 का बजट है वही रखेंगे या वी विल चेंज? दूसरे केस में हमने 200 एडमिशंस प्लान किए थे, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 150 आए। सो what shall we now forecast for the remaining 3 quarters? तो पहले केस में हमारा ख्याल यह है कि पहले क्वार्टर में एडमिशन ज्यादा आ गए हैं, दूसरे में इतने नहीं होंगे, तो हमने 200 को टोन डाउन करके 150 कर दिया और बाकी को 200 रखा, फिर 150 कर दिया। सो हमारी
एक्सपेक्टेशन अभी भी यही है कि 800 हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। जो 300 आए हैं ये नहीं होगा कि हर क्वार्टर में 300 आते रहे। सेकंड केस के अंदर आपके जो है आपने एडमिशन जो है किए, सर 150 आए, लेकिन आपने उसके बाद एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेन चलाया और आपको लगा कि अब जो इंक्वायरीज आ रही हैं पेरेंट्स की तरफ से दे आर ह्यूज, तो आप समझते हैं कि अच्छा खासा इन्फ्लक्स Q2 के अंदर आएगा और 350 बच्चे जो हैं वो आ जाएंगे और बाकी वो 200-150 चलेगा। तो आप एक्चुअली अपने बजट से अब 50 एडमिशंस एडिशनल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह ये केस 3 और केस 4 में कर सकते हैं। किसी भी बजट को बनाने के लिए एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ता है। कैन एनीबडी हेल्प मी, व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स? चलिए मैं जी वालेकुम जी 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 सर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम बेसिकली हेड्स को डील करते हैं। जो अकाउंट हेड्स होती हैं जिसमें हम इनकम, एक्सपेंस, लाइबिलिटीज, इक्विटी होती है उसमें शामिल, फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, और इसमें हमारा जो है वो सरप्लस और डेफिसिट जो प्लान होता है वो इसी के थ्रू होता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। आपने जो बात की, यानी ये जो हेड्स होते हैं, आई थिंक दैट्स द करेक्ट आंसर। मैं जी आपको आगे ले जाता हूं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक मेजर हेडिंग होती है रेवेन्यूज, ठीक है, जिसको सेल्स भी कहा जा सकता है। रेवेन्यूज के अंदर एक स्कूल के हवाले से आप देखेंगे तो ये हेडर्स कवर होते हैं। हम रजिस्ट्रेशन फी लेते हैं स्टूडेंट से, एडमिशन फी लेते हैं, एनुअल फीस लेते हैं जिसकी कई मदात हो सकती हैं, ट्यूशन फी लेते हैं, बाद स्कूल में पार्किंग फीस लेते हैं, और अगर हमने एक स्कूल के अंदर सेल्स भी रखी हो बुक्स एंड स्टेशनरी की तो उसकी सेल भी एक रेवेन्यू का। और अगर हमने स्कूल के अंदर एक टक शॉप किसी को किराए पर दी हो, वो जो वहाँ स्नैक्स वगैरह सेल करता हो, तो उसकी जो इनकम आएगी वो भी रेवेन्यू होगा। तो रेवेन्यू साइड के ऊपर ये चंद एग्जांपल्स हैं जो हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर मिले। ऑन द अदर साइड वी हैव एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक दूसरा कौन सा होता है जी? एनीबॉडी? रिकरिंग सर, रिकरिंग। जी ठीक है, रिकरिंग भी एक डेफिनेशन है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दूसरा होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। That means ongoing there you are do time to time. जी जी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, इसमें अगर आपने बिल्डिंग अपनी खुद बनाई है या बनानी है तो ये होगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आप खरीदेंगे, ये होगा। इक्विपमेंट खरीदेंगे, टीचिंग मटेरियल्स, एड्स खरीदेंगे। और अगर आपने फ्रेंचाइज ली हुई है किसी इदारे से तो उसकी जो फ्रेंचाइज फी देंगे, ये दरअसल एसेट्स बाय करने के लिए जो एक्सपेंस किया है तो उसको कैपेक्स कहते हैं। और ऑपरेशनल एक्सपेंस वो है कि स्कूल को चलाने के लिए जितने अखराजात चाहिए, उसमें सैलरीज हैं, आपने बिल्डिंग का रेंट देना है, बिजली पानी के खर्चे अदा करने हैं, आपके कंज्यूमेबल्स खर्च होंगे, आपके जो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर होगा, और जो इक्विपमेंट आपने खरीद रखा है उसमें जो डेप्रिसिएशन होती है वो इसके अंदर आएगी। तो ये बेसिकली किसी भी इदारे का चार्ट ऑफ अकाउंट्स तकरीबन ऐसा ही मिलता जुलता होगा। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज है, मैंने डेप्रिसिएशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, कि एमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन। तो कोई साथी मेरी हेल्प करें, ये क्या किस स्टडिया का नाम है? Excuse me. जी आमना।
हाँ, डेप्रिसिएशन मींस के वक्त के साथ साथ जो उसकी डेप्रिसिएशन होती है, मतलब लेट्स सपोज कंप्यूटर लिए है तो उसकी एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकलती है हर साल, उसको अपडेट करना होता है, तो वो या कोई फर्नीचर हो गया उससे रिलेटेड कोई नुकसान जबरदस्त होता है तो वो डेप्रिसिएशन के जी हेड में। जी बेटे, बहुत सादी जुबान में हर चीज जब हम खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो घिसता चला जाता है। उसकी एक यूजफुल लाइफ होती है, हर चीज हमेशा नहीं रहती, हर चीज फानी है। तो हम अंदाजा करते हैं कि कितनी देर में ये चीज जो है ये घिसकर खत्म हो जाएगी, काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी, तो उसकी वो जो लाइफ है उसके ऊपर उसकी वैल्यू को हम कम करते हैं डेप्रिसिएशन से। जी आतिरा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? जी सर डेप्रिसिएशन की तो समझ है, एमोर्टाइजेशन इज अ न्यू वर्ड फॉर मी, इसलिए मुझे इसके बारे में जी। डेप्रिसिएशन तो आई अंडरस्टैंड द वियर एंड टियर व्हिच गोज ऑन, चीजें टूटती हैं वक्त के साथ, आपको नई बनानी पड़ती हैं। यस। अच्छा, ये जो एमोर्टाइजेशन है, कोई साथी इसको बयान करेंगे? अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन दैट इंशाल्लाह। चलिए मैं हेल्प करता हूं। डेप्रिसिएशन होती है टेंजिबल एसेट्स की, वो चीज जिसको हम अपने हाथों से छू सकते हो। फर्नीचर, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट, फिक्सचर्स, इनकी डेप्रिसिएशन होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो इनटेंजिबल होती है। अगर आपने फ्रेंचाइज ली है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी बड़े ब्रांड से, और वो आपको कहते हैं जी आप हमें 10-20 लाख रुपए जो है ना फ्रेंचाइज फी दे दें, तो ये जो फ्रेंचाइज फी है, क्या हम पहले साल के अखराजात के ऊपर डाल दें सारे का सारा मलबा? ऑब्वियसली नॉट। तो हम क्या करेंगे, इसको अमोर्टाइज करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिसके हमने पैसे अदा किए हैं, जो कैपेक्स के अंदर जिनकी बुकिंग होगी, उसको अमोर्टाइज किया जाता है। मैं अब आपको इसकी मिसालें दे देता हूं। ये 2 मुख्तलिफ मेथड्स हैं, आप लोगों ने बता दिया। एसेट्स की जो वैल्यू होती है ओवर टाइम, उसके बाद ये है कि एसेट जो है जब इसको हम डेप्रिशिएट करते हैं तो इसका टैक्स भी फिर हमें कम अदा करना पड़ता है अगर हमारा कोई वेल्थ टैक्स किसी चीज के ऊपर हो। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के ऊपर होती है उनकी यूजफुल लाइफ के एतबार से, और अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर होती है। अब मैं आपको मिसालें दे देता हूं। ये डेप्रिसिएशन है, आपने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग इतनी जल्दी नहीं टूटती, कोई 20-30 साल इसकी लाइफ कम से कम होनी चाहिए। तो उस हवाले से अगर हम 20 ईयर्स अज्यूम करें तो 5% एनुअल डेप्रिसिएशन होगी। फर्नीचर फिक्सचर भी को 5-1 साल निकाले जाते हैं, अगर बहुत शैतान किस्म के बच्चे हमारे स्कूलों में ना आ जाएं तो उसको भी 5 साल के हम रखते हैं। हमारे जो कंप्यूटर्स हैं आजकल के जमाने में जरा जल्दी डेप्रिशिएट हो जाते हैं, उसको उस पे कम पे रखा जाता है, और जो दूसरा इक्विपमेंट है उसको आप ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब जनरेटर वगैरह को 5 साल भी लगा सकते हैं। अमोर्टाइजेशन की मिसालें ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे मैंने कहा, आपने किसी बड़ी चेन की फ्रेंचाइज ली तो आप उसको 10 साल पे अमोर्टाइज कर दें, 10-20-50 लाख रुपए आपने दिए। कि बड़े इदारे से एफिलिएशन लिए तो वो एफिलिएशन की आप 1 टाइम फी पे करते हैं, वो कर दें। और एक चीज होती है, वो जो आप स्कूल के ऑपरेशन शुरू करने से पहले बहुत सारा खर्चा कर देते हैं, कंपनी बनाने का, लीगल एक्सपेंसेस एंड सो ऑन, तो वो उस पूरे साल के ऊपर नहीं डाला जाता पहले साल के ऊपर, बल्कि अमोर्टाइज करके एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स इसको स्प्रेड किया जाता है। मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम का भी ख्याल करना है, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू। अच्छा ये बताइए कि कैपेक्स के अंदर जो चीजें बुक की जाती हैं, क्या सारे एसेट्स कैपेक्स में बुक कर दिए जाते हैं या कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं किया जाता? मोबाइल फोन एक एसेट है, ये कैपेक्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सर नहीं जाना चाहिए। माशाल्लाह, दैट्स राइट।
तो यूं समझिए कि हर कैलकुलेटर वगैरह ऑर्गेनाइजेशन, पे जी सर कैलकुलेटर भी इसमें नहीं जाने चाहिए। ब्यूटीफुल एग्जांपल। इसमें इसमें सर एक फिक्स एसेट होते हैं, एक करंट एसेट्स होते हैं। जी तो जी ये बेसिकली करंट एसेट्स है ना, मोबाइल, कैलकुलेटर, ये चीजें, इनकी कोई प्रोजेक्टर लाइफ नहीं है। तो जी, मैं बताता हूँ इसलिए करंट एसेट्स में और भी चीजें आती हैं। असल में करंट एसेट्स के अंदर कैश इन हैंड, कैश इन बैंक वगैरह भी होता है। लेकिन चूंकि हम कैपेक्स की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने सही जवाब दिया कि यूं समझिए हर ऑर्गेनाइजेशन अपने पास एक वैल्यू एस्टेब्लिश कर लेती है कि हम फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए से कम कीमत की चीज को फिक्स एसेट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, इसको कंज्यूमेबल्स में डाल के राइट ऑफ कर दें। अकॉर्डिंग टू बिजनेस साइज दिस चेंजेस। अब आ जाइए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं स्कूल का बजट। लें जनाब, अब जरा आप तैयारी कर लें। आप एक स्कूल के मैनेजर हैं, आपने नया नया आपको जॉब मिली है एक स्कूल के मैनेजर की, वो स्कूल भी नया है, खुलने जा रहा है या खुल चुका है। और सबसे पहले जो स्कूल के ओनर हैं उन्होंने कहा कि जनाब मैनेजर साहब, जरा स्कूल का अगले साल का बजट तो बना दें। तो थोड़े पसीने वसीने तो आएंगे वैसे। अब ये बताइए कि इन बजट्स को, इस बजट को बनाने से पहले आपके जहन में कौन से सवालात उठते हैं? एनीबॉडी? जी जी, अतीरा आप बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें वी फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ इनकम कि कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, और फिर ये कि हमारे एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, और अगेन वही वाली बात कि इसमें से हमारी कितनी हम कैसे फिक्स करेंगे अपने एक्सपेंडिचर्स को अपनी इनकम के अंदर, और उसमें कोई हम क्या हमें कोई किसी से कोई हेल्प चाहिए होगी हेड ऑफिस से, या वुड वी रेज फंड्स ऑन आवर ओन टू मीट दोज एक्सपेंसेस, or do we have to cut short, we have to adjust those expenses within our means of income, within our sources of income. ये चीजें सारी सर। राइट। साजिद, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, इनकम और एक्सपेंस। जी, ये तो ठीक हो गया ना जी। चलिए मैं आपसे शेयर करता हूं कि सबसे पहले ये वो एजम्पशंस हैं, ये नंबर्स नहीं है, ये एजम्पशंस हैं। पहली चीज क्या है कि हमारा स्कूल महीने में कितने दिन खुलेगा, तो कुछ चीजें जो है वो डेज को कैलकुलेट, और बेशक बच्चे तो शायद 6 महीने स्कूल में आते हो, लेकिन स्कूल का बिजनेस जो है वो सारा साल चलता रहता है इन वन वे और अदर। आप 6 महीने के लिए बिल्डिंग खाली करके मालिक मकान को वापस नहीं कर देते कि हमें नहीं चाहिए। सो इट मींस ऑपरेशंस जो है वो 12 महीने रन करते हैं। फिर आप अज्यूम कर रहे हैं कि पहले साल में आपके स्कूल के अंदर अगर 400 बच्चों को बिठाने की कैपेसिटी है, तो चूंकि ये नया बिजनेस है और पहले साल ये भर नहीं जाएगा इल्ला माशाल्लाह, तो आपने पहला एजम्पशन ये लिया कि 25% स्कूल भरेगा। यू कैन चेंज दैट। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फिर आपने ये एजम्पशन लिया कि अगले 3-4 सालों में हर साल जो स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ेगी वो तकरीबन 10% पर एनम होगी। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। अगर आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि जी मैं हर साल दुगनी कर सकता हूं, तो जरूर इसमें 50% लिख दें। लेकिन आपको 1-2 साल काम करने के बाद पता चल जाएगा कि व्हाट इज रियलिस्टिक। पहले साल आपने एजम्पशन लिया कि हमारे पास 60 बच्चे आएंगे, और यकीनन आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कुछ बच्चे छोड़कर भी चले जाते हैं। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बाज लोगों की ट्रांसफर्स हो जाती हैं एक शहर से दूसरे शहर, कोई और भी रीजंस हो सकती हैं, फैमिली रीजन। कुछ जो लोग अपने बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जब एक बच्चा उस क्लास में चला जाए जो आप ऑफर नहीं कर रहे, तो फिर दूसरे बच्चे को भी ले जाते हैं कि हम किसी एक स्कूल में डाल देते हैं। एंड परफॉर्मेंस भी हो सकती है। आपने एजम्पशन ली कि स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेशियो आपका जो है 5% पर एनम होगा। फिर आप आगे आ गए कि बिजली माशाल्लाह हमारे मुल्क में दिन ब दिन चीजें महंगी हो रही हैं। एजम्पशन लिया कि जो बिजली के बिल हैं वो हर साल पिछले साल से 10% इंक्रीज कर जाएंगे। इसी तरह चूंकि महंगाई हो रही है,
तो हमें टीचर्स की सैलरी सारी जिंदगी के लिए सेम नहीं रख सकते, हमें उनकी सैलरीज को बढ़ाना होगा। तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट बड़ा भी कंजर्वेटिव हो तो इस वक्त 10% चल रहा है, तो हमें सैलरी एक्सपेंसेस जो हैं वो भी, अगर इस साल किसी टीचर की तनख्वाह 30,000 रुपए है तो अगले साल ये तनख्वाह जो है वो 33,000 रुपए हो जाएगी। इसलिए हमारा बजट जो है वो इसके मुताबिक बनेगा। बिल्डिंग का रेंट, कोई भी मालिक मकान आपको 10 साल के लिए बिल्डिंग नहीं देता कि जी सेम रेंट दे दे आइंदा 10 साल, तो उसमें को 5% को 7% को 10% कहते हैं। तो जब आपका रेंटल एग्रीमेंट होता है तो उसमें ऑलरेडी ये क्लॉज लिखी होती है कि आपका रेंट किस परसेंटेज से इंक्रीज होगा, ये वहां डाल दीजिए। स्टूडेंट फी ग्रोथ रेट, चूंकि महंगाई हो रही है, हम जब टीचर्स को तनख्वाह भी ज्यादा देंगे, चीजें भी महंगी हो जाएंगी, तो फीस भी बढ़ानी होगी। तो आपने एक एग्जम्पशन ये लिया कि आप हर साल अप्रोक्सीमेटली 5% फीस बढ़ाएंगे, ट्यूशन फी की बात कर रहा हूं, और जो आपकी एडमिशन फी है वो आप हर साल 7% बढ़ाएंगे। ये ख्याल रखिएगा कि ये नंबर सिर्फ एग्जांपल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन विच लेवल ऑफ स्कूल you are going to open or you are operating, it can change. उसके बाद आपके एक्सपेंस के assumption ये हैं कि आपके स्कूल में स्टेशनरी और एंटरटेनमेंट के अखराजात जो होंगे वो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के 5% होंगे। आपके कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, जो आपके टेलीफोन वगैरह के बिल्स हैं, वो जो हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन, स्कूल के जो टेलीफोन के बिल्स हैं जिसके अंदर इंटरनेट भी शामिल है, वो 7% ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होंगे। जो आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, स्कूल की मार्केटिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे, वो आपके रेवेन्यूज का 5% होगा। प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, लीगल फीस देनी पड़ती है या आप ऑडिट करवाते हैं, ऑडिटर्स को फीस देनी पड़ती है, दैट विल बी 1% ऑफ, और स्टूडेंट्स टीचिंग एज दे वो roughly 2% of revenues. These are just examples for you to consider. मैं चाहता ये हूं कि आप अपने स्कूल का अगले साल का बजट जब बनाएं या आपको कहा जाए कि उस एक्सरसाइज के अंदर आप कंट्रीब्यूट करें, तो सबसे पहले सवाल जो आपने अपने आप से या उस टीम से करने हैं कि जी बजट तो बाद में बनेगा, पहले ये बताइए कि हमारी असम्पशंस क्या क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब हमने देने हैं। फिर आगे डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने बताया, डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं। एक चीज इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन, कि जी हमने कहा कि जी 20% डेप्रिसिएशन होगी तो 5 साल में वो चीज 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम दूसरा मेथड लें जिसके अंदर के पहले 20% को कम कर दें तो बाकी बचे 80, फिर 80 के ऊपर 20% लगाएंगे तो वो जो है वो 16% कम होगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर का मेरा ख्याल है कि 20% लगाना चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट का 33%, अदर इक्विपमेंट का 20%, टीचिंग एड्स का 33%, दिस कैन वेरी। और अब आप आ जाएं कि जो आप ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि नया स्कूल खुलने जा रहा है जिसमें सिर्फ 5 क्लासेस होंगी। ये नया स्कूल है, हम इसको सिर्फ क्लास 2 तक लेके जा रहे हैं। प्ले ग्रुप होगा, KG1 होगी, KG2 होगी, क्लास 1 और क्लास 2 होगी। तो हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि चूंकि जब कोई नया स्कूल खोला जाता है तो सबसे ज्यादा बच्चे किस क्लास में आते हैं? प्ले ग्रुप में आते हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी टोटल एनरोलमेंट होगी, जो हमने 60 कहीं दिखाया है, तो उसमें से 40% बच्चे प्ले ग्रुप में आएंगे, 20% KG1 and 2 में आएंगे, और 10 and 10% क्लास 1 and 2 में। क्लास 1 and 2 में इसलिए एडमिशंस कम होंगे कि ये बच्चे अगर आएंगे तो ये किसी ना किसी दूसरे स्कूल को छोड़कर आएंगे, या कोई बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के तहत ये बच्चे, इनकी होम स्कूलिंग हुई हो और इनके पेरेंट्स इनको स्ट्रेट क्लास 1 या क्लास 2 में लेकर आना चाहें, विच इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ। ये बजट एजम्पशंस मजीद आगे, ये आपने अब 5 साल का जो बजट बनाया जाता है किसी नए स्कूल का, 1 साल का नहीं बनाया जाता, 3 या 5 साल का, और आइडियली 5 साल का बनाना चाहिए कि इस 5 साल में, क्योंकि पहला जब स्कूल खोलेंगे तो पहले साल में तो आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट ना कीजिए, तो किस तरह वो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो इसमें assumptions हम ये ले रहे हैं कि ये पहले साल में हमारे 60 बच्चे होंगे, दूसरे साल में 117 हो जाएंगे, तीसरे साल में 171 हो जाएंगे, और चौथे साल में 218 और 5वें साल में 206।
ये ख्याल रखिएगा कि इसमें दो चीजें आपने बड़ी गौर से देखनी है। पास आउट, ये बच्चे जो क्लास 2 में थे और हमारा स्कूल क्लास 2 तक ही है, तो क्लास 2 के 6 बच्चे जब पास हो जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? किसी दूसरे स्कूल में चले जाएंगे, क्योंकि हम क्लास 3 अभी ऑफर नहीं कर रहे, तो ये कम हो जाएंगे। और ये 3 जो हैं ये ड्रॉप आउट्स हैं, जो बच्चे किसी वजह से स्कूल छोड़ जाएंगे। तो ये ऊपर वाले फिगर्स प्लस हो रहे हैं, नीचे वाले माइनस हो रहे हैं, और चूंकि यहां से यहां ये ट्रांजिशन भी हो रही है, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी वियर्ड सी। अब आप आ जाएं कि आपने स्कूल खोलने से पहले ये तय करना है कि आप फीस क्या चार्ज करेंगे। फीस चार्ज करना एक बहुत अहम डिसीजन है। आपको अपने स्कूल को देखना होगा कि किस कैटेगरी में फॉल करता है। ये पाकिस्तान के महंगे तरीन स्कूलों में हो सकता है। क्या आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं 8-10 कनाल के अंदर? क्या आप इतना हाईली क्वालिफाइड स्टाफ रख सकते हैं? और क्या जिस इलाके में आप स्कूल खोलने जा रहे हैं उस इलाके के लोगों की पेइंग कैपेसिटी ऐसी है? तो ये सारी चीजें, और उस इलाके में फिर जो बाकी स्कूल खुले हुए हैं क्या आप उनके साथ compete कर सकते हैं? सो ऑल दीज क्वेश्चंस, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन नहीं है, ये तो स्कूल की जो टोटल मैनेजमेंट, ये ओनरशिप के इन्वेस्टर्स के सामने क्वेश्चन है, लेकिन दे आर रिलेटेड टू फाइनेंस। हमने अज्यूम किया है, इस वक्त ये अजम्पशन हमने लिया है कि हम एडमिशन फी 5,000 रुपए लेंगे, और ये पहले मैं बयान कर चुका हूं कि ये हर साल 7% इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह सिक्योरिटी जो है वो हम 3,000 चार्ज करेंगे, और मंथली फी जो है जिसको ट्यूशन फी कहते हैं वो हम प्ले ग्रुप के लिए 2,500, और KG 1 and 2 के लिए 3,000, एंड क्लास 1 and 2 के लिए, सॉरी ये क्लास 2 लिखना था मैंने आखिर में, इसमें टाइपिंग एरर है, ये हम 3,500 लेंगे। क्यों जी, कोई बात समझ में आई? जी Fatima, would you like to add something? This was a very important part of budgeting that I just explained. Is it clear? Would you like to add something? Do you have a question on that? Assalamu alaikum, sir. Ji walaikum salam wa rahmatullah. Sir, actually, I am a bit weak in budgeting. Actually, I never studied this. This was never my origin. The financial management and the projecting and the budgeting. This was never the part of my studies. So I've never been. I am very new to it. Well, I am trying to understand till the end of the course. If I'll have any question to it, I would definitely ask you. But I am trying to catch you up in that. Yeah. जी ठीक हो गया। फातिमा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर मैं बहुत तेज चल रहा हूं तो आई कैन स्लो डाउन माय पेस, बट देन अल्टीमेटली आवर कोर्स विल गो longer than 2 hours. Does everybody No, it's okay. agree? Your pace is absolutely okay. Yeah. Perfect. So if I'm going too fast, please let me know. I can slow down. My goal is that everything that I am explaining should be understood 100% by every one of you. अगर आप में से किसी को भी कम समझ आया तो I will consider that as my failure rather than yours. एरम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे बेटे? एरम, are you with us? एरम कामरान, okay, if Iram is not coming, yeah, Sabah Javed. Yes sir. जी, आप जो कुछ मैंने अभी एक्सप्लेन किया assumptions के बारे में, is it understandable? If जी not, सर बिल्कुल। please raise a question. जी सर, नया है लेकिन मैं समझ रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। योर पेस इज ओके, आई एम गुड। Perfect. Anybody else would like to add something or ask a question on this specific part, assumptions for budget? जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमने बजट जो 5 साल बनाया है उसमें क्लास 2 को कंसिडर किया है, लेकिन दूसरे साल में हमने क्लास 2 को क्लास 3 में रिवर्ट
किया, साल 3 में हमने इसको क्लास 4 में रिवाइज किया है। तो व्हाट इज द रीजन वी डोंट रिवाइज आवर क्लास एज वेल? आवर बजट इज फॉर 5 ईयर। माशाल्लाह, ना सिर्फ ये कि बहुत अच्छा सवाल है, दैट्स अ वेरी गुड एडिशन। बिल्कुल आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप ये कहें कि स्कूल पहले 2 साल हम क्लास 2 तक चलाएंगे, तीसरे साल हम क्लास 3 ऐड करेंगे, चौथे साल हम क्लास 4 ऐड करेंगे और 5वें साल हम क्लास 5 ऐड करेंगे। If the building size allows you to do that, I would rather recommend you should. बिल्कुल वैलिड आपने सवाल उठाया और वैलिड आपने ये इनपुट दिया है। अगर आपकी बिल्डिंग अलाउ करती है, फर्दर इन्वेस्टमेंट अलाउ करती है, तो आपके वो बच्चे जो क्लास 2 में से जा रहे थे छोड़कर, क्योंकि आपने क्लास 3 ऑफर नहीं की, तो उनको आप रिटेन कर सकेंगे। बट समवेयर यू विल हैव टू पुट अ स्टॉप इवन एट क्लास 5। बिल्कुल वैलिड आपका इनपुट है। और कोई साहब? एनीबडी एल्स? एनी सिस्टर? एनी ब्रदर? आगे चलें जी। ऑलराइट, अब ये वो थे assumptions, अब रियल नंबर्स आ रहे हैं। कोइंसिडेंटली दिस इज रिपीटेड। हमने अब अपना बजट बनाने जा रहे हैं, हम अपनी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस लेकर आ रहे हैं। तो पहली हमारी प्रोजेक्शन ये है कि कितने बच्चे हम किस क्लास में लेकर आएंगे और किस तरह वो ज्यादा होंगे या कम होंगे। आफ्टर दैट हमें ये assumption हमने स्कूल फी की ले ली है, लेकिन हमने अब ये प्लान करना है अगर हमें अच्छा क्वालिफाइड स्टाफ स्कूल में लेकर आना है तो वी नीड टू पे देम वेल। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर पहली चीज तो आपने तय किया कि स्कूल को चलाने के लिए इन लोगों की जरूरत है। यूनिट प्रिंसिपल, टीचर कोऑर्डिनेटर, एक्टिविटी टीचर, कंप्यूटर टीचर, प्ले ग्रुप टीचर, KG 1 और 2 के टीचर्स, क्लास 1 और 2 के टीचर, गेम्स टीचर, अकाउंटेंट, स्टूडेंट अटेंडेंट, गार्ड, पियन, क्लीनर, गार्डनर, मे बी आई हैव मिस्ड अ कपल, लेकिन ये बुनियादी जरूरतें किसी भी स्कूल को चलाने के लिए जो अफरादी कुव्वत जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। And soon we are going to also talk about human resource management, which is also one of my topics, inshallah. तो उसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। अब आपने ये प्लान किया कि you would need 1 principal, 1 teacher coordinator, and so on, for 2 teachers for play group, 2 teachers for KG1, KG2, and so on, और 4 student attendants, और फिर 1 गार्ड, 2 क्लीनर, 1 PM। और ये सैलरीज जो लिखी हुई हैं, अगर आप लोगों की सैलरीज इससे कम है तो मायूस ना हो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर नंबर दिए हैं, और ज्यादा हैं तो खुश हो जाएं। बट एनीवेज ये असल में डिपेंड करता है कि जो स्कूल आप जिस कैटेगरी का स्कूल खोलने जा रहे हैं, दिस ऑल डिपेंड्स कि आप फीस क्या चार्ज करेंगे और आप टीचर्स को क्या पे करेंगे, और ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड देयर क्वालिफिकेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो पहली प्रोजेक्शन, पहला अब हमारी प्रोजेक्शन ये आई कि कितना एनरोलमेंट होगा। दूसरी प्रोजेक्शन आपकी ये आई कि सैलरीज एक साल में, एक साल की अगर सैलरीज लें तो ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए एक साल की सैलरीज पे करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। अब ये आपकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन चल रही है बजट की, ख्याल रखिएगा। कैपेक्स का हमने जिक्र सुना किया। अब हम प्लान करेंगे कि हमें स्कूल को चलाने के लिए चीजें कौन सी खरीदनी है। ये फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की एक लिस्ट है। आपके कितने क्लासरूम्स होंगे, उसमें कितनी टीचर्स होंगी, कितने बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठेंगे। ऑप्टिमल साइज आई बिलीव इट इज बिटवीन 20 and 25। तो उस हिसाब से आप प्लान करेंगे कि आपको ये फर्नीचर कितना चाहिए, राउंड टेबल्स कितनी चाहिए, चेयर्स प्ले ग्रुप के लिए कितनी चाहिए, केजी के लिए कितनी चेयर्स चाहिए, टीचर्स की जो है वो फर्नीचर कौन सा चाहिए, कंप्यूटर चेयर्स कितनी चाहिए, और ये कारपेट कितना बिछेगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कैटेगरी है, आपने देखा था, याद होगा आपको कि कैपेक्स की एक कैटेगरी थी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो हम अब ये कह रहे हैं कि अगर सारा फर्नीचर हम खरीदें तो तकरीबन 15 लाख रुपए हमें चाहिए होंगे इस सामान को खरीदने के लिए। हम बजट बनाने जा रहे हैं। वी वुड नीड टू टेल आवर इन्वेस्टर्स हाउ मच मनी वी नीड टू स्टार्ट दिस स्कूल।
अब आप क्या होगा फिर, ये तो फर्नीचर एंड फिक्सचर था, अब आप कुछ इक्विपमेंट भी खरीदेंगे, कंप्यूटर्स खरीदेंगे, प्रिंटर खरीदेंगे, यूपीएस लगाएंगे, एयर कंडीशनर्स खरीदेंगे, एयर कूलर व्हाटएवर, और इसके अलावा आप और चीजें भी खरीदेंगे। आप बच्चों के लिए जो खेलने का सामान होता है, सीसॉ खरीदेंगे, कोई स्लाइडें लगाएंगे, कोई मंकी बाज लगाएंगे, स्कूल क्लासरूम के अंदर व्हाइट बोर्ड्स लगाएंगे, सॉफ्ट बोर्ड्स लगाएंगे, कोई बाहर पानी का कूलर रखेंगे। बाय द वे, दिस लिस्ट इज नॉट कंप्लीट, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल of various things, various furnitures, fixtures, office equipment and other equipment you would need to run the school. तो 15 लाख ये हो गए, 5 लाख ये हो गए, 3 लाख ये हो गए, तो ये कोई 23 lakhs का ये बजट अभी बना किसका, सिर्फ कैपेक्स का। इसके लिए ये भी जरूरी है कि आपको चीजों के रेट भी पता होने चाहिए। बजट सिर्फ दफ्तर में बैठकर नहीं बनाया जाता, बजट बनाने से पहले मार्केट में निकला जाता है, चीजों की कीमतें मालूम की जाती है, जिस क्वालिटी की आप चीज खरीदना चाह रहे हैं बाजार में कितने की मिल रही है, यू वुड नीड टू नो द प्राइसेस, अप्रॉक्सीमेट प्राइसेस। ये अब आपका जो ओवरऑल कैपेक्स का बजट आ गया है, जो ये तकरीबन 35 लाख रुपए का बनता है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपने ये 3 लाख का खरीदना, तकरीबन ऑफिस इक्विपमेंट 5 लाख का, ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 14 लाख का, प्री ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये जब स्कूल शुरू करने से पहले कुछ अखराजात होने शुरू हो जाते हैं, ये प्री ऑपरेटिंग में जाते हैं। ये टोटल कैपिटल कॉस्ट आपकी आ गई 26 लाख रुपए के करीब। एंड देन आपने बिल्डिंग का किराया देना है, आपको पता है कि बिल्डिंग का किराया 2 महीने का कम से कम एडवांस दिया जाता है। वो सिक्योरिटी भी मांगते हैं जो रिफंडेबल होती है, और हमारे पास हमारे गले में कुछ पैसे भी होने चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। तो ये तकरीबन 36 लाख रुपए इस स्कूल को, अगर ये assumptions ठीक मान ली जाए, ये 36 लाख की बजाय 16 लाख भी हो सकते हैं, और ये 1 करोड़ रुपया भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस क्वालिटी का कितना बड़ा स्कूल खोलने जा रहे हैं। Is it clear or any questions on capex? Capex means capital expenditure. जी साजिद, प्लीज अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। क्लियर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्लियर हो गया जी? जी बिल्कुल। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन हो किसी और साथी का? कैन वी मूव ऑन? ओके, अच्छा, ये आपने बेसिकली आपने एक बजट बना लिया है इसके अंदर। इसमें अब आप ये देखिएगा कि वो जो आपके थे ना ये सैलरीज और सारी चीजें हैं, वो बेसिकली ऑपरेशनल एक्सपेंस था, हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। और कैपेक्स जो है वो ये सारी जो इक्विपमेंट खरीदना, फर्नीचर खरीदना, फिक्सचर्स खरीदना है। और जब ये सारा आपने बजट बना लिया, अब आपने स्कूल रन करना शुरू कर दिया, तो आपके पास एक बुक कीपिंग का सिस्टम होना चाहिए, वो एक्सेल की स्प्रेडशीट में हो या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर हो, कि जो भी खर्च होगा या जो भी इनकम होगी उसको रिकॉर्ड करना है एवरी डे। तो हमने क्या किया कि हमने स्कूल की सप्लाईज खरीदी 15 लाख रुपए की, तो बाकायदा तौर पर हमने लिखा कि किस डेट को ये खरीदी, उसको अकाउंट नंबर देना चाहिए, फिर उसका वाउचर होना चाहिए, अगर कोई हमारे पास बिल आया है तो उसके ऊपर को नंबर लिखना चाहिए, और उसके ऊपर को वाउचर नंबर एलोकेट करना चाहिए। पीवी का मतलब परचेज वाउचर, और उसके बाद आपने लिख दिया कि जी ये उसकी डेट है, और उसके बाद उसके आपने एक नंबर लगा दिया। जिस कंपनी को आपने पे किया है वो MS स्कूल सप्लाईज हैं, मटेरियल बाय किया है, इसकी अमाउंट ली है। तो इस तरह रोजाना डेली जनरल लेजर के अंदर ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। और ये एक दूसरी एग्जांपल आ गई, यहाँ आपने स्कूल सप्लाईज जो हैं वो बाय की हैं, और आपने ये रेंट वसूल किया है बुक शॉपकीपर, जो आपने एक दुकान खोली हुई है, तो ये 50,000 रुपए उसने आपको पे किए हैं रेंट के, तो वो आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होगा। तो बेसिकली जनरल लेजर के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज होती हैं। जो पैसे हम खर्च करते हैं वो हम डेबिट में लिखते हैं,
जो पैसे हम वसूल करते हैं वो हम क्रेडिट में लिखते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब आ जाए, आपने अपने स्कूल को रन कर लिया एक क्वार्टर या एक साल, तो फाइनेंशियल एनालिसिस आपने करना है अपने स्कूल का कि हाउ वेल यू डिड। वो जो पॉन्डर का जो एरिया था ना जी, आपने प्लान कर लिया, आपने उसके बाद जो है आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया। कौन से सवालात आपके जहन में आने चाहिए कि जी मैं अपने स्कूल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने जा रहा हूं या जा रही हूं? तो व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड? एनीबॉडी? Sir, results from our budgeting. ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं मिस सनोबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कुछ इसमें हेल्प करें, बताइए कि कौन से सवालात हमारे जहन में आने चाहिए while we are analyzing the financial performance of our school. अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं बिल्कुल एक्सक्यूज करना चाहूंगी। क्वेश्चन तो खैर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, लेकिन मैं क्लास कुछ लेट ज्वाइन कर पाई बिकॉज ऑफ सम रीजन, मैं इसको नहीं अटेंड कर पाई। लेकिन फाइनेंशियल एनालिसिस की अगर हम बात करें पॉइंट और इसको हमें क्यों, इसका हमारे पास एक रिकॉर्ड मैनेज होना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करते हैं अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो मोस्टली हमारे पास हम डिपेंड कर रहे होते हैं, वो फाइनेंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। और फाइनेंस की इन एंड आउट को अगर हम फोकस नहीं करेंगे, उसको हम मैनेज नहीं करेंगे और उसको हम एनालाइज नहीं करेंगे, हम अपनी डिमांड एंड सप्लाई को फोकस नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो सारा सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता करके आउट होते चला जाएगा और सिस्टम एक तरह से फेल हो जाएगा। मैं सिर्फ यही इस सेंस में कह सकूंगी, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि मैं सर बिल्कुल भी आपको कोई कुछ भी नहीं सुन पाई। मैं आई एम जस्ट साइनिंग जस्ट 2 to 3 minutes before I just signed. चलिए कोई बात नहीं। आपने बहुत अहम बात की है कि फाइनेंशियल एनालिसिस जरूरी क्यों है। मैं तमाम पार्टिसिपेंट से ये हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, ये बड़े कीमती सेशंस हैं, इसका 1 मिनट भी मिस ना कीजिएगा अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी। Please make sure that you give the highest priority to this training, because अगर आप आधी बात सुन पाएंगे तो you will not be able to benefit fully from the session. अब मैं आपके जी सर, कैन आई स्पीक? यस प्लीज। अच्छा सर, क्वेश्चंस आप पूछे थे कि विच क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड व्हाइल पॉन्डरिंग, तो उसमें सर आई वाज थिंकिंग कि हमें ये क्वेश्चन पूछना होगा खुद से कि वाज राइट अमाउंट एलोकेटेड टू ऑल द एरियाज, ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज, एंड was there any waste, and was our promotional budget right? Could we have gained more benefits if we had given more, if we have allocated more budget to it, वगैरह वगैरह। सर इस तरह के डिफरेंट एरियाज के हिसाब से मेरे ज़हन में ये था किस तरह से हम क्वेश्चंस पूछेंगे। माशाल्लाह, आई थिंक आपने बहुत अच्छे अंदाज में इसको टैकल किया। लेट मी शेयर विद यू व्हाट आई बिलीव। पहली चीज ये है कि पहला सवाल हम आपसे अपने आप से ये करेंगे कि हमने जो प्लान किया था वो क्या, हमने कितना इनकम प्लान की थी, कितना एक्सपेंस प्लान किया था। वी शुड पुट दीज नंबर्स इन फ्रंट ऑफ अस। हमने कैपेक्स क्या प्लान किया था, ओपेक्स क्या प्लान किया था, रेवेन्यूज क्या प्लान किए। दूसरा सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि अब जब जनाब हमारा वो नतीजा सामने आ गया, नामा अमाल हमारे सामने आ गया 1 साल के बाद, तो वो हमने अचीव क्या किया, प्लान क्या किया था। इनकम हमने प्लान की थी लेट्स से 10 लाख रुपए, तो आया क्या 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 11 लाख, 15 लाख। तो ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के सामने रखेंगे। वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स व्हाट डिड वी प्लान, व्हाट डिड वी अचीव। और ये बड़ा अहम सवाल है, हाउ मच डिड वी डिविएट फ्रॉम द प्लान।
अच्छा, डिविएशन का मतलब आमतौर पर लोग लेते हैं कि हाँ जनाब अगर कम हुआ है तो जरा क्लास होनी चाहिए। ना 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 ना, even if we made more money as compared to what we planned, this still is worth asking the question why, although it's a good news, and if it's the bad news then definitely why. So how much did we deviate from the plan, कितना हम plan से आगे या पीछे गए, और ये है अगला सवाल कि what made this deviation. प्लान के मुकाबले में ज्यादा नताइज आए तो क्यों, ये ख्याल रखिए कि why is the most important question on earth. और हम आमतौर पर घबराते हैं why का जवाब देने का, खास तौर पर आप लोग एजुकेशन फील्ड से हैं, हमारे बच्चे अक्सर why पूछते हैं, and sometimes we don't have the answer. We should prepare ourselves for giving the answer to every why that our children ask. इस में हमें अपने आप से पूछना होगा कि हमने 20 रुपए खर्च करने का प्लान किया था, 25 हो गए, why? हमने 10 लाख की इनकम प्लान की थी, 7 लाख आए, why? Because there is always a reason behind that. अब ये है कि हम अपने आप से पूछें कि हमसे कहां कोई गलती हुई है जिसकी वजह से ये रिजल्ट जो हमारा प्लान था उसके मुताबिक नहीं आया, या कहां हमसे कोई ऐसा अच्छा काम हुआ है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट हमारे प्लान से भी बेहतर आया। इसलिए कि if we did something good, we should repeat it, we should remember that, we should do it again and again, and if we made a mistake, we should avoid it, we should make sure that we do not repeat that mistake again. So ये असल चीज है कि what did we learn out of the analysis. Analysis सिर्फ for the sake of, कहते ना analysis for paralysis, no no no. Analysis is a very helpful tool for us to understand why things went different as compared to our plan and what needs to be done in order to improve ourselves. How can we improve our planning? Number one, क्या हमने प्लान करते हुए कुछ चीजों को, हमने लिखा जी फर्नीचर हम जो है वो खरीद लेंगे 5 लाख का, और उसमें लिखा हुआ था एक कुर्सी आ जाएगी 2000 की। बाजार गए तो पता चला कि आजकल अच्छी चेयर जो है वो 5000 से कम में नहीं आती। तो सारे का सारा प्लान चौपट। हमने कहा जी हम टीचर को तनख्वाह देंगे 30,000। हम जब मार्केट में गए अच्छे टीचर्स को सिलेक्ट करने, हमने लोगों को इंटरव्यू भी कर लिया, सेलेक्ट भी कर लिया, जब हमने उनको ऑफर लेटर दिया कि योर सैलरी विल बी 30,000, तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो क्या हमें अंदाजा था कि मार्केट के अंदर अच्छे टीचर्स की सैलरीज क्या चल रही? सो इट मींस कहीं प्लानिंग के प्रोसेस में हमने अपनी assumptions को अच्छी तरह नहीं लिया। दिस इज वन पार्ट। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमने प्लान ठीक किया था, हमें कुर्सियां 4 चाहिए थी, हमने 40 खरीद ली या 5 खरीद ली या 6 खरीद ली, वो चीजें जिनकी हमें जरूरत नहीं थी, वी बॉट दोस। हमें मार्केटिंग के ऊपर पैसा हमने रखा हुआ था कि वी विल स्पेंड 150,000 टू प्रमोट आवर बिजनेस, टू मार्केट इट। हमने कहा यार छोड़ो क्या करना है, मार्केटिंग के पैसे बचा लें, एंड एज ए रिजल्ट एडमिशंस ही नहीं आए। अब हम सर पकड़ के बैठे हुए, यार ये हुआ क्या? हुआ ये है कि आपने मार्केटिंग का एक्सपेंस प्लान किया था, यू डिडंट बॉदर स्पेंडिंग दैट, सो दिस इज द रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी प्लानिंग से डिविएट किया है, हमने जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक काम नहीं किया। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ। यकीन जानिए कि अगर मैं ये कहूं कि आज की प्रेजेंटेशन की सबसे कीमती स्लाइड कौन सी है, दिस इज द वन। प्लीज always ask yourself these questions when you are analyzing the performance of your school. हम आगे चलते हैं, we are really running out of time. ये आपको याद होगा जी, we have 3 kinds of financial statements. दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसके पास कम से कम ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनते हो। इनकम स्टेटमेंट, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पैसा
कहां से कितना आया, कहां कितना गया। स्टेटमेंट में इनकम में क्या था, क्या लगाया यानी एक्सपेंस क्या किया, क्या कमाया यानी रेवेन्यूज क्या आए, और क्या बचाया यानी प्रॉफिट क्या बना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ और किस मकसद के लिए हुआ। और बैलेंस शीट, किसका कितना देना है, किससे कितना लेना है। दैट्स इट। ये थोड़ी सी क्राउडेड स्लाइड है, मैं आपके सामने ना तो ये सारा पढ़ना चाहूंगा, स्लाइड्स आपको मिल भी जाएंगी। इनकम स्टेटमेंट के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो रेवेन्यूज के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, कि आपने जो कॉस्ट जो सेल की है उससे जो डायरेक्टली रिलेटेड, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, वो एक्सपेंसेस क्या है। ग्रॉस मार्जिन बेसिकली रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दें तो जो बाकी पैसे बचते हैं उसको ग्रॉस मार्जिन कहते हैं। आपने 100 रुपए की चीज बेची, 80 रुपए की आपको घर में पड़ी थी, तो ग्रॉस मार्जिन क्या आया, 20 रुपीज। और अगर 100 रुपए की चीज बेची, 50 रुपए की आपको घर में पड़ी थी, ग्रॉस मार्जिन क्या आया, 50 रुपए। उसमें से फिर हम मिन्हा करते हैं जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये वो कॉस्ट होती हैं जो ओवरऑल ऑपरेशंस के अंदर हमें जरूरत होती है, उनको जब हम ऐड करते हैं तो फिर ये जैसे आप कह लें आपके मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इन एक्सपेंसेस को हम जब निकाल लेते हैं तो फिर मजीद हमारे पास प्रॉफिट कम हो जाता है। मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस जो आप जितनी आप प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं, आपने अपने स्कूल के लिए जितनी एडवर्टीजमेंट करनी है, जितनी इश्तहारबाजी करनी है, आपने कोई ट्विटर पर इश्तहार देने हैं, फेसबुक के ऊपर चलने हैं, आपने पंफलेट्स छापने हैं, आपने बिलबोर्ड्स लगाने हैं, ये सारी मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस होता है। जब आप ग्रॉस रेवेन्यूज में से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दे तो मार्जिन बच जाता है, ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन में से जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस निकाल दें तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए अखराजात होते हैं वो होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आप एसेट्स बाय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपके सामने बाकायदा एक इनकम स्टेटमेंट रख रहा हूं। ये ख्याल रखिएगा कि इनकम स्टेटमेंट आपने 2 वक्त में बनानी। एक, जब आप बजट बनाएंगे तो उसमें आप एक प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, अगले 5 साल में हमारे रेवेन्यूज क्या आएंगे, अगले 5 साल में हमारे अखराजात क्या होंगे, अगले 5 साल में हमारा ग्रॉस मार्जिन क्या होगा, और अगले 5 साल में हमें नेट प्रॉफिट क्या होगा। ये जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं ये रियल इनकम स्टेटमेंट है 1 साल गुजर जाने के बाद। एक स्कूल जो 2019 के शुरू में खुला था उसने 2019 में परफॉर्म किया और फिर 2020 में परफॉर्म किया। अब ये इसकी इनकम स्टेटमेंट है जिसके अंदर कंपैरेटिव एनालिसिस भी है। 2019 में हमने एडमिशन फी में जो रेवेन्यू कमाया दैट वाज 300,000 रुपीस। 2020 में ये 435,750 पे चला गया, which is 45% more than the previous year. So we should be happy. अब ये देखना ये है कि आइंदा सालों के लिए जो हमने बजट बनाया था क्या उसमें भी हमने ये प्रोजेक्शन रखी थी या कम रखी थी या ज्यादा, तो हम उसको फोरकास्ट में जाके चेंज करेंगे अगले सालों। एंड दिस इज 8% ऑफ रेवेन्यू। और होता है वो आपके 2019 में 20 लाख रुपए आए थे और 2020 में तकरीबन 47 लाख रुपए आए हैं। तो दैट हैज गॉन अप बाय 127%, व्हिच इज ग्रेट। इसलिए कि एडमिशन फी सिर्फ वन टाइम होती है और जो ट्यूशन फी है वो हर महीने आती है। तो दैट इज 92% ऑफ रेवेन्यूज। आपका सब टोटल बना, आपने टोटल रेवेन्यूज जो 2020 में कमाए वो तकरीबन 52 लाख रुपए हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर स्कूल बिजनेस में मुख्तलिफ मॉडल लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन द सिंपलेस्ट मोस्ट मॉडल इज कि हम कॉस्ट ऑफ सेल में सिर्फ फैकल्टी के स्टाफ की सैलरीज को लगाते हैं। तो ये पिछले साल में हमने 17,22,000 रुपए खर्च किए थे, इस साल 17,55,000। कोई सवाल आपके ज़हन में आया जी ये टीचर सैलरी जो है 2% बढ़ी है?
हमने तो कहा था कि हम 10% बढ़ाएंगे, एनीबॉडी? इसरा, आर यू विद अस? सर कुछ सबा बात कर रही हूँ, जैसे कुछ टीचर्स परमानेंट होते हैं तो उनकी सैलरी में फर्क पड़ता है, या प्रोबेशन पीरियड उनका खत्म होता है तो भी फर्क पड़ता है, इस तरह से बात है? बेटे बात यह है कि जो हमने टीचर्स प्लान किए थे ना, हमने तमाम टीचर्स को जो है वो साल के शुरू में हायर नहीं कर लिया। तो कुछ टीचर्स को हमने दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने रखा, तो उनकी सैलरी जो है अब तो वो इंक्रीज होगी जब उनका कम से कम 1 साल मुकम्मल होगा। तो जिन टीचर्स को हमने शुरू में रखा था उनकी अगर हमने 10% बढ़ाई भी हो तो दे आर वेरी फ्यू, इस वजह से पहले ये साल के अंदर सैलरी इंक्रीज इतना ज्यादा नहीं आया। गॉट इट? और ये हमारी जो सैलरीज हैं दे आर 34% ऑफ रेवेन्यूज। तो जो ग्रॉस मार्जिन हमने 2020 में कमाया, रेवेन्यूज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस मार्जिन, इसको याद कर, इसको रट लीजिए, ये समझ लीजिए कि दुनिया के बड़े से बड़ा अकाउंटेंट जो है वो भी आपको यही जवाब देगा। ये चंद चीजें आप अपने पल्ले बांध लें तो यू कैन प्रूव एक्चुअली दैट यू आर फेयरली गुड एट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ये वो चीजें हैं जो हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर 4 साल में पढ़ाई जाती हैं। उसका अगर 100% नहीं तो मैं आपको 50% इन 2 आवर्स दे रहा हूं, ट्रस्ट माय वर्ड्स। तो इनकम स्टेटमेंट में जो पहला हिस्सा आया वो क्या था? रेवेन्यूज का। ये लेफ्ट के ऊपर पूरी इनकम स्टेटमेंट आपके सामने पड़ी है, दिस वन, एंड आई जस्ट zoomed the first part which is revenues. अब आज आ जाए इनकम स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है? एक्सपेंसेस का है। तो जनरल एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी सैलरीज है, बिल्डिंग का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हैं, पानी के बिल हैं, गैस के बिल्स हैं, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारी चीजें आप देखिएगा कि ये आपने देखा कि अब ये 2020 के अंदर 10% बढ़ी हैं, ठीक है, बिकॉज स्कूल तो ऑपरेट करना शुरू हो गया था ना, बिजली पानी के खर्चे होने शुरू हो गए और पानी के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। लगता है कि हमने कोई शुरू में को पानी कम कंज्यूम किया या बहुत ज्यादा इसके कोई रेट्स बढ़ गए होंगे, या हो सकता है कि हमें टैंकर्स हमारे पीछे पानी ना आ रहा हो और हमने टैंकर्स के जरिए पानी बाई करके तो खरीदना पड़ा हो, तो दैट कुड हैव बीन द रीजन फॉर इंक्रीजिंग। चीज बता रही है क्या इंक्रीज हुई है, ये आपने सारा कुछ इस तरह आपने देखा कि आपका जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है पिछले साल 21 लाख रुपए था, अब 24 लाख रुपया हो गया है। ऑपरेटिंग इनकम आपने देखा कि पहले साल में आपने 14 लाख रुपए का नुकसान किया। तो जब हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें शुरू में बहुत कम ऐसा होता है कि पहले ही साल से प्रॉफिट आ जाए, लेकिन अगले साल में क्योंकि पहले साल में एनरोलमेंट बहुत कम होती है, तमाम अखराजात हो रहे होते हैं, टीचिंग स्टाफ मैक्सिमम हम ले चुके होते हैं, क्लासरूम्स आधे खाली पड़े होते हैं, बल्कि 25% भरे हुए हैं, 75% क्लासरूम जो है खाली पड़े हुए। दूसरे साल में वो क्लासरूम्स अल्हम्दुलिल्लाह 50% भर गए, अभी 50% खाली। तो इसमें हमें 10 लाख रुपए का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। फिर इस प्रॉफिट में से अगर हमने कहीं से कोई लोन लिया हो तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह पे किया जिसको करने के बाद तो हमें पहले साल में 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, वेयरएज दूसरे साल में 5.25 लाख रुपए का जो हमें प्रॉफिट हुआ। तो दिस इज नाउ द एक्चुअल पिक्चर ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए स्कूल कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ 2019 वर्सेस 2020। इसमें 2 चीजें एनालिसिस की हैं, गौर करने वाली बात है। दिस कॉलम ग्रोथ कि हमारे अखराजात कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, और अगर हमने प्लान नहीं किया इस तरह तो हमें अपनी फोरकास्ट अगले 3 सालों की तब्दील करनी होगी। और ये बेंचमार्क्स होते हैं कि हमारे जो जनरल एक्सपेंसेस हैं उनका कितने % सैलरीज में जा रहा है, कितने % रेंट में जा रहा है, और अगर कोई चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रही हो तो हमें इस पर गौर करना चाहिए कि व्हाट डू वी नीड टू डू डिफरेंटली इन ऑर्डर। फर्ज करें आपने एक बिल्डिंग ले ली, उस बिल्डिंग के अंदर आपकी जरूरत से 2 गुना कमरे ज्यादा है,
और उसका रेंट इतना ज्यादा है, आपने देखा कि हमारे पास तो इतना ज्यादा एनरोलमेंट नहीं आ रही और ना ही इमीडिएटली आएगी, you might consider even moving your school to another nearby building, a smaller one. तो इस तरह आप अपने इन एक्सपेंसेस को जो है वो मैनेज करेंगे। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, ये ख्याल रखिएगा कि इसमें 3 अहम चीजें होती हैं। अब मैं आपका बहुत इम्तिहान नहीं लेता, बिकॉज वी आर ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम। पहली चीज होती है कि जो आपने ऑपरेट किया है अपनी कंपनी को, अपने स्कूल को, उन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से जो कैश आप लोगों ने खर्च किया है या जो कैश आप लोगों ने वसूल किया है, वो इस कैटेगरी में आएगा। दूसरी कैटेगरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बाज़ का पैसे उधारे लेने पड़ते हैं, बाज़ का लोन लेना पड़ता है, तो वो जो अमाउंट्स होती हैं जब इस ऑपरेशंस को चलाने के लिए, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती हैं। और किसी भी बिजनेस को करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अपने पास से। तो जो शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी और इस किस्म की चीजें हैं जो उन्होंने फिजिकली पैसे दिए हैं स्कूल खोलने और चलाने के लिए, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर बुक होगा। ये देखिए आपके सामने अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई, उसी तरह 2019 और 2020 की। अगर आपको याद हो तो ये नेट प्रॉफिट आपने पिछले में देखा था, पिछली स्टेटमेंट में 16 लाख माइनस 2019 का और 5.25 लाख रुपए 2020 का। अब ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो में कहाँ आ रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश प्रोवाइडेड बाय का क्या मतलब होता है? वो जो इस एक्टिविटी ने पैसा हमें दिया है, और यूज फॉर लिखा हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर, दैट मींस इट्स अ नेगेटिव नंबर। इस एक्टिविटी ने खा लिए हैं, खर्च कर लिए हैं। तो ये वो चीजें नेट प्रॉफिट, डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है जी, जरा बताइए, एनीबॉडी? इसरा, आर यू विद अस? जी, सोबिया? Yes, sir. Sir, account receivables are those that we receive from others, or our liabilities, you can say. नहीं, accounts receivable is the money that we have to receive from others. तो जब किसी ने हमारे पैसे देने हो तो वो पैसे हमारी लायबिलिटी है या उसकी लायबिलिटी है? Okay, sir. Okay, got it. वो उसकी लायबिलिटी है, वो हमारा एसेट है। रिसीवेबल्स के ऊपर ज़कात देना लाजिम है। वो पैसा आपका किसी के पास अमानतन पड़ा हुआ है। गॉट मी? तो Yes, ये sir, वो got चीजें it. हैं, ये प्रीपेड बिल्डिंग रेंट्स वगैरह, ये सारे जो हैं, ये हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से कैश फ्लो आया है। इसका दूसरा हिस्सा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो हमने लॉन्ग टर्म कर्ज लिया है किसी से, वो यहां लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म डेट इसके अंदर आएगा, और जो हमने शेयर्स अगर किसी को इशू किए हों जिसके बदले में हमने इक्विटी ली हो, तो वो आएगी आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। ये देखिए, ये अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। जो शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया है वो इसके अंदर चला गया है। जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे आए हैं वो इसके अंदर आए हैं, और आपके पास जो शॉर्ट टर्म लोन है वो भी इसके अंदर आया था। इस तरह ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उसमें ये चीजें शामिल हैं। अब हमारी तीसरी स्टेटमेंट आ गई, बैलेंस शीट। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है, इसको गौर कीजिएगा। बैलेंस शीट के अंदर दो चीजें होती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट किसको कहते हैं जी? एनीबॉडी? Sir, those things which we have in our inventory. जी बिल्कुल ठीक, जो हमारा सरमाया है,
Resources of business. जी, जो हमारा सरमाया है वो कैश की शक्ल में या सामान की शक्ल में या बिल्डिंग्स की शक्ल में जो होगा वो हमारा सरमाया है, वो एसेट्स हैं। लायबिलिटी क्या चीज है? जो आप हर हाल में पे करनी है, ऐसी अमाउंट जो आपने हर हाल में पे करनी है, जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। जी, लायबिलिटी वो चीज है, हम किसी के मकरूज हैं। हमने अगर वेंडर्स के पैसे देने हैं जो पेएबल्स हैं तो वो लायबिलिटी है। हमने किसी से एडवांस लिया हुआ है तो वो लायबिलिटी है। हमने कोई बिल पे करना है जो आकर हमारी टेबल पे पड़ा हुआ है, वो लायबिलिटी है। जो शेयर होल्डर्स ने हमें पैसे दिए हैं जिसको हम इक्विटी कहते हैं, वो भी वो उनका पैसा हमारे पास अमानत पड़ा है, वी हैव टू पे इट बैक। तो ये जो बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स हैं वो करंट एसेट्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले किसी साथी ने बताया था करंट एसेट्स क्या होते हैं जी? कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, वो बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, हमने लोगों से पैसा लेना है। स्टॉक इन्वेंट्री, आपके पास कुछ सामान पड़ा हुआ है, आप कोई चीज बेचते हैं। आप फर्ज करें स्कूल किताबें खुद बेचता है, तो स्कूल के पास जो किताबों का स्टॉक पड़ा हुआ है वो आपका करंट एसेट है। आपने कोई प्रीपेड जो आपने किराया 6 महीने का आपने अदा कर दिया एडवांस में, तो उसमें 5 महीने का किराया जो है वो आपका एसेट है, इसलिए कोई भी खर्च नहीं हुआ, वो अगले 6 महीने में खर्च होगा। स्टाफ को दिए, के अंदर वो, जी प्लीज, स्टाफ को दिया हुआ एडवांस, जी बिल्कुल वो एसेट है, करंट इसलिए एसेट। कि वो आपका पैसा है जो स्टाफ के पास चला गया, आपने वापस लेना है, उनकी लायबिलिटी है, आपका एसेट है। बिल्कुल सही। टेंजिबल एसेट्स के अंदर जो फिक्स एसेट्स हैं उसके अंदर ये सारी आपकी बिल्डिंग, आपकी प्रॉपर्टी, आपका इक्विपमेंट, आपका फर्नीचर, आपकी लर्निंग एड्स, एयर कंडीशनर्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ये सारी चीजें, प्रोजेक्टर्स, ये सब कुछ शामिल है। इनटेंजिबल एसेट क्या है जी? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया था। स्कूल के हवाले से कोई एक इनटेंजिबल एसेट बताइए। सर स्कूल की जो सिक्योरिटी हमने पे की हुई है, या स्कूल की हमने एफिलिएशन दी है, या हमने स्कूल की मद में रॉयल्टी पे की हुई है हेड ऑफिस को। जबरदस्त। ये जो आप फ्रेंचाइज फी किसी को पे करते हैं हेड ऑफिस को, वो आपकी इनटेंजिबल एसेट है आपका। ठीक है जी। आपने एफिलिएशन फी दी हुई, एफिलिएशन फी दी हुई है, वो भी इनटेंजिबल एसेट। उसके बाद आपकी लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज, अमाउंट्स ड्यू टू बी पेड टू द पार्टीज विद इन अ ईयर। 12 महीने के अंदर अंदर जो चीजें काबिल अदा हों वो करंट लायबिलिटीज होंगी, और जो 12 महीने के बाद वाजिबुल अदा हों वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होंगी। शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या चीज है जी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नहीं, वो तो ठीक है, होती क्या है जी? ये पैसा किसका है, किसने दिया है, किस लिए दिया है? सर ये इन्वेस्टर का है, आरओआई लेने के लिए। हाँ, ये इन्वेस्टर का पैसा है जो उसने इस स्कूल के बिजनेस में लगाया है, उसके ऊपर मुनाफा कमाने के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाने के लिए। तो ये थे कंपोनेंट्स इसके बैलेंस शीट के। अब मैं क्विकली आपको बताता हूं, हमारे पास 15 मिनट बाकी है, सवाल और जवाब भी इंशाल्लाह आएंगे, और अभी चंद स्लाइड्स बाकी हैं मेरे पास। बैलेंस शीट में गौर कीजिए, क्या चीजें आपके सामने आई? करंट एसेट्स, इसमें क्या चीज है? कैश इन बैंक या कैश इन हैंड। अकाउंट रिसीवेबल, रेंट की जो सिक्योरिटी दी हुई है वो पैसे हमारे हैं, वो जो हमने मालिक मकान को दी हुई है सिक्योरिटी, वो हमारे पैसे उसके पास अमानत पड़े हुए हैं। बिल्डिंग का जो हमने 2-3 महीने का रेंट एडवांस में उसको दे दिया, 1 महीने का रेंट जो एक्सपेंस में चला गया, बाकी हमारी उसके पास अमानत है। ये हो गए हमारे करंट एसेट्स 15 लाख रुपए के। हमारे फिक्स एसेट्स क्या है? मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये सारे हमारे तकरीबन 10.5 लाख रुपए के फिक्स एसेट्स हैं।
इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, प्री ऑपरेटिंग कॉस्ट ये है। और इसमें मैं भूल गया हूँ लिखना, आप ऐड कर सकते हैं। अगर ये मैंने अज्यूम किया कि ये फ्रेंचाइज नहीं है, अगर ये फ्रेंचाइज है तो आपने जो फ्रेंचाइज फी दी है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। अब आ जाए आपकी लायबिलिटीज क्या है। आपने कर्ज लिया हुआ है किसी बैंक से स्कूल को चलाने के लिए, ये देखिए पहले साल में 19 लाख था, आपने कुछ वापस कर दिया, अब ये 15 लाख, पौने 15 लाख रह गए हैं। स्टूडेंट से जो आपने सिक्योरिटी ली हुई है ये रिफंडेबल सिक्योरिटी है, ये बस स्टूडेंट छोड़ के जाए तो इनके पैसे उन्होंने वापस करने हैं या स्कूल के अगेंस्ट आपने सेटल करने हैं। अदर लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म डेट आपने लिया हुआ है जो 1 साल के बाद में पे करना है वो है। शेयर होल्डर्स ने आपको यहाँ जो है वो 12 लाख रुपए तकरीबन आपको पे किए हैं, ये उनका पेड अप कैपिटल है। और ये रिटेन्ड अर्निंग क्या चीज है, बताएं जी। एनीबॉडी, रिटेन्ड अर्निंग क्या चीज है जी? जी सर ये रिटेन्ड अर्निंग से बताइए। सर रिटेन्ड अर्निंग से मुराद हम ये भी ले सकते हैं जो हम रेंट वगैरह ले रहे हैं स्कूल की परमिसेस के अंदर किसी भी चीज का। नहीं 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 नहीं, आपने अच्छा 1 साल स्कूल चलाया, उस स्कूल में जो मुनाफा हुआ वो रिटेन्ड अर्निंग। अंदाजा कीजिए कि एक स्कूल का एक ही मालिक है, उसने 10 लाख रुपए लगाए, वो 10 लाख रुपए उसकी इक्विटी है और 1 साल के बाद उसको 1 लाख रुपया मुनाफा हुआ, तो अब उसका कितना पैसा आपके पास है? 11 लाख। 10 लाख उसकी ओरिजिनल इक्विटी और 1 लाख मुनाफा भी तो उसका है ना जी, तमाम खर्चे निकालकर, इन्वेस्टर तो वो है ना। तो अब ये 11 लाख हो गया। और अगर 10 लाख रुपए उसने कमाया और साल के आखिर में, पहले साल के आखिर में 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो उसकी रिटेन्ड अर्निंग क्या हुई? -1 लाख। तो उसका टोटल क्या बचा? 10 लाख में से 1 लाख जो है वो जाया हो गए, अब आ गया 9 लाख रुपए बाकी। तो इस तरह उसकी जो हमारी जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है उसमें से पेड अप कैपिटल अगर 10 लाख हो, 1 लाख नुकसान हो जाए तो बाकी 2 लाख, 9 लाख बचेंगे। तो ये जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो या शेयर होल्डर्स की इक्विटी के अंदर इजाफा करती है या कमी करती है। वाज़ेह है जी? अच्छा, ये मेरी गुफ्तगू हो गई है खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई 14 मिनट बाकी हैं। मैं चाहूंगा कि ये आखिरी 14 मिनट जो पहले हमने 1.25 घंटे खर्च किए हैं उससे कहीं ज्यादा यूजफुल हो। और मेरी ख्वाहिश होगी और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप में से मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हैं इस गुफ्तगू में हिस्सा लें। पहला सवाल मेरा ये है कि आप ये बताइए कि आपने आज क्या नई चीज सीखे। जो आपको पहले से पता था वो छोड़ दीजिए, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को माशाल्लाह बहुत सी चीजें पहले से पता होंगी। व्हाट इज समथिंग न्यू दैट यू हैव लर्न टुडे? साजिद साहब बताएंगे? साजिद आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि आज आपने क्या नया सीखा? अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली और इसमें हम अक्सर एजम्पशंस में गलतियाँ करती है, तो मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली कि एजम्पशंस में और हमें बजट जो है वो बहुत ज़्यादा देर के बाद रिवाइज नहीं करना चाहिए, हमें उसको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि हम कहाँ पर डिविएट हो रही है। तो इस चीज़ में मेरी जो बजटिंग है इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। एक एमोर्टाइजेशन है, ये मेरे लिए बिल्कुल नई टर्म थी और मैंने इस पे पहले इस तरह कोई काम नहीं किया है। और भी बहुत सी चीज़ें थी जो मेरी नज़र से बिल्कुल पहली दफ़ा गुजर चुकी है।
और उसकी एक मुझे बजटिंग में ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जो बिल्डिंग कास्ट है या जो टेबल आपने बनाए थे कि वो हमारे रेवेन्यू की कितनी % बनती है। मैंने कभी बजट में इसको नहीं लिया है, मैं इस तरह तो बना लेता हूँ लेकिन मैंने ये नहीं लिया है कि ये हमारे रेवेन्यू की इतनी % है। तो ये मुझे जो एग्जैक्ट अमाउंट है उसमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मदद देगी। थैंक यू। माशाल्लाह जी। सबा, आप कुछ बताना चाहेंगी कि आपने आज क्या नया सीखा? जी सर, ये पहली बात, फाइनेंसिंग मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है। टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से थोड़ा ताल्लुक रहा है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ मुझे समझ आया। आपने बहुत आसान करके हम नॉन फाइनेंस लोगों के लिए बताया इसको, कि जैसे ROI है, कैपेक्स, ओपेक्स है, बजटिंग, फोरकास्टिंग है। ऑल्दो आई हैव टू गो थ्रू द स्लाइड्स अगेन, लेकिन फिर भी काफ़ी जो है इसमें जैसे मैं एक नॉन फाइनेंस बंदा, तो मुझे इसमें समझने का मौका मिला। और यही जो है डेप्रिसिएशन है, एमोर्टाइजेशन है, बहुत से न्यू टर्म्स हैं जिनको ज़ाहिर है बहुत गहराई में समझने का मौका मिलेगा। और 5 P's आपने बताए कि प्रिडिक्ट, प्लान, परफॉर्म, पॉन्डर, प्रिपेयर। तो इससे यकीनन हमारी प्लानिंग और मैनेजमेंट भी बेहतर होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी, सोफिया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? Yes, sir. Sir, मैं चूँकि BCom किया हुआ है, that's why I can understand the financial things. But जो मुझे न्यू इसमें लगा है वो ये है कि how to manage with low budgets. आप अगर आपके बजट आपका कम है तो आप उसमें स्कूल को किस तरह लेके चल सकते हैं, उसका भी हमें इसमें आइडिया आ रहा है बहुत ज़्यादा। Thank you, sir. Good to know, good to know. जी, इस तरह आप कुछ कहना चाहेंगी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। Sir, I have learned so many new things, like beginning with the 5 P's जो आपने बताया वो बड़े important थे कि for managing anything क्या 5 P's जो उन्हें चाहिए। फिर उसपे जो एक important part था कि ponder on outcomes, उसमें जो आपने questions discuss किए कि क्या questions हमें उस stage पे अपने आप से करने चाहिए कि हमें मतलब हम कितना planning से जो है वो deviate हुए। That was quite interesting. फिर जो आपने बजटिंग और फोरकास्टिंग का जो डिफरेंस आपने क्लियर किया वो भी मेरे लिए काफ़ी न्यू था कि मतलब हम बजट 1 ईयर के बाद जो हमारे पास सिचुएशन रियल सिचुएशन आ जाती है उसके बेसिस पे फिर हम जो फोरकास्टिंग करते हैं, तो दैट वाज आल्सो न्यू टू मी। और बाकी ये जो बजटिंग वगैरह है वो तो ऑब्वियसली जब हम प्रैक्टिस करेंगे, वंस यू गो ऑन विद मेकिंग दैट इन रियल, तो उसका आइडिया ज्यादा जब अच्छे तरीके से होगा कि हाउ वी आर एबल टू डू दैट और नॉट। इंशाल्लाह। कमर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे भाई? डेफिनेटली सर, मैंने जो आज 3 से 4 इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द फर्स्ट मैंने आज सुनी है, उनमें से फर्स्ट जो थी वो थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी इसमें क्या आपने बताया कि एक इनकम स्टेटमेंट होती है कि जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने कितना क्या पैसा लगाया और उससे क्या कमाया और फिर हमने क्या उससे सेविंग किया, क्या बचाया उसमें से। और सेकंड आपने बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने भी ये फर्स्ट टाइम सुनी है कि एक पैसा हमारे पास कहाँ से आया है और हम उसको किन किन एरियाज में जो वो स्पेंड आउट करने जा रहे हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया जो मैंने पढ़ा था दैट वाज अ बैलेंस शीट, कि किसका हमने कितना देना है और किससे हमने कितना लेना है। तो ये वो इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आज मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ी है। और फिर मैंने जो 2 इंपॉर्टेंट टर्म मजीद पढ़ी थी वो थी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन में मैंने ये सीखा कि जो मेरे टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे कि मेरे जो फर्नीचर्स है, इक्विपमेंट है, जो मेरी फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसमें हम डिस्कस करते हैं। और फिर जो मैंने सीखा है वो था अमोर्टाइजेशन की, जो हमारे पास जो इनटेंजिबल मेरे पास एफर्ट्स हैं, जैसे कि फ्रेंचाइज फी है या प्री ऑपरेशनल कॉस्ट है मेरे पास, या एफिलिएशन फी है। तो ये तमाम वो एरियाज हैं जो मैंने आज फॉर द फर्स्ट टाइम सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें काफ़ी जो है ना वो नॉलेज भी गेन किया है। और जब मैंने के व्हेन आई विल बी एबल टू become a school manager in real sense, I will try to apply all these things in true manner and spirit, inshallah. अल्लाह, बहुत आपने एलेबोरेटली माशाल्लाह उन चीजों को हाईलाइट किया। आतिरा, आप बेटे कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपने क्या नई चीज सीखी? Yes, sir. Sir, it was a very, very wholesome lecture and I have learned a lot. और
मैंने इस बजटिंग की हुई है, मैं बनाती रही हूँ, लेकिन ये amortization इज ए वेरी न्यू टर्म फॉर मी, और दैट इज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। हम देते रहे हैं फी, एफिलिएशन फी वगैरह देते रहे हैं, बट वी डिडंट नो कि इसको इस तरीके से हम एड्रेस करते हैं। फिर सर जो एजम्पशंस थी वो मतलब दे वर सो डिटेल्ड, आइडिया नहीं था कि इतनी डिटेल से बनाना चाहिए, बिकॉज मैंने अब तक शुरू नहीं किया अपना कोई सिस्टम, या मैं उसकी फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं रही, लेकिन आई हैव बीन रनिंग इंस्टीट्यूशंस, बट एजम्पशंस जो हैं ये बहुत ही बड़ा एनलाइटनिंग था ये पार्ट। फिर सर ये कैपेक्स एंड ओपेक्स, ये जो टर्म्स हैं कैपिटल एक्सपेंसेस और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ये मेरे लिए बिल्कुल नई थी। इक्विटी के बारे में आज समझ आई कि ये लफ्ज सुना तो हुआ था, बट व्हाट एक्चुअली इट इज वो आज पता चला। और फिर सर फाइनेंशियल एनालिसिस में जो क्वेश्चंस आपने दिए हैं वो तो बेस्ट हैं सर, कि वो इतने वो दे वर वेरी वेरी गुड, कि इतने इन डेप्थ या इतने डिटेल्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पहले कभी नहीं पूछे, लेकिन आपने इस तरह से उनको कैटेगराइज किया है, और स्पेशली जब डिविएशन की बात आपने की है वो बहुत ही जबरदस्त थी, और उससे बहुत सीखा है सर। वेरी वेरी गुड लेक्चर, थैंक यू वेरी मच सर। फातिमा, आप बेटे कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपने क्या नया लर्न किया आज? Yes, firstly, thank you so very much, sir, for giving me this opportunity. उसके अलावा मैं आपसे ये मतलब कि मैंने आपको जिस तरीके से पहले बताया, like I said before, कि I am new to financial management and financial की field से, finances की field से I'm very new. तो everything was new to me. There was nothing as such जो मैंने पहले सुना हो या उसको implement किया हो या किसी भी हवाले से I had a know-how, not at all. Yes, the first thing that you started off was by asking कि आप कहाँ से start लेंगे, तो उस time पे I was speechless because of course that is not my forte. तो फिर मैंने ये चीज pick की when you started up by clarifying कि we can start by assuming the number of admissions while making a financial chart flow, or while doing the financial management we can start by assuming the admission. उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इक्विपमेंट जितना हम स्कूल्स के लिए लेते हैं वो आता है, एंड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में हमारी वाउचर फी, सैलरीज वगैरह आती है, सो दैट वाज आल्सो न्यू टू मी। क्रेडिट और डेबिट का जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज आल्सो न्यू। एनालिसिस, यस, एनालिसिस वाज समथिंग दैट आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग आउट। तो एनालिसिस जो है वो एक कैसे क्रिएट करना है, दिस वाज आल्सो समथिंग आई हर्ड एंड आई पुट माय ईयर टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इनकम लाइक जो 3 हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट हो गई, हमारा कैश फ्लो हो गया, बैलेंस शीट हो गई, दिस वाज आल्सो समथिंग I never knew, and now I know how to categorize them and how to make them in different portions. Again, then gross margin जो हमारा होता है financial management, वो कैसे निकलता है, of course subtracting the revenues from the cost of sale, और ये सब चीजें जो हैं that was of course a learning point of view, मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, something I got to know. Financial questions जो आपने लिखवाए, उस पे आपने जब question किया, again I was speechless. I did not know कि what financial questions could I come up with, but then when you came up with those questions, those were very enlightening. So yeah, thank you so very much, sir. Welcome. मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि my career started with a very very humble start. And I still remember my first very interview in my career. And the guy who was interviewing me was a German, and he asked me exactly the same question. Can you tell me how many kinds of financial statements are there? यकीन जानिए कि मुझे सर से लेके पैरों तक पसीना आया, and I didn't know what to say. So although this is a very compact session of just 2 hours, but trust me, this should have given you such a level of confidence. You can actually go and talk to any financial guy, anybody who is guru of finance, and if you remember these few terms and talk to them, they will not believe that you have not done a graduation in finance and accounting. Trust my words. So just keep those words and they'll be great. Usman, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं इस सारे सेशन पे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपने समंदर को कोजे में बंद कर दिया है। ये
कूजे में तो बंद कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ चीजें समंदर से बाहर पड़ी रह गई हैं। उसमें सर मैं ये चाहूंगा कि ये सारे सेशन के बिहाफ पे कि आप ना प्लीज एक हमारे जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पे आप एक ना टेम्पलेट काइंडली शेयर करवा दें इसकी एक्सेल में स्प्रेडशीट की, जिसको इसको एप्लीकेबल नॉलेज डिलीवर होगा, इसकी अप्लाई कर सकें चीज़ों को इनपुट करके आउटपुट करके रियल टाइम कैलकुलेशन से। तो it is requested to you that please upload a spreadsheet or Excel template. Thank you. आज आपने सबसे ज्यादा काम का सवाल पूछा है, बल्कि बॉल हमारी कोर्ट पे फेंक दिया। आई थिंक दैट वाज वेरी ब्रेव ऑफ यू। असल बात यह है कि ये सारी चीजें स्लाइड्स के ऊपर एक्सप्लेन कर देना कदरे आसान है, लेकिन एक ऐसी टेम्पलेट जिसके अंदर जाकर आप एक पूरे स्कूल का बजट बना सकते हो, दैट इज व्हाट यू ऑल नीड। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम ये टेम्पलेट बनाकर आपको उसके ऊपर डाल देंगे। बल्कि आपके अगर उस सिलसिले में कोई सवालात भी होंगे तो आई वुड वेलकम दोज क्वेश्चन। तकरीबन कवर हो गया है। आप में से जो भी इन रियल सेंस अब इस नॉलेज को अप्लाई करने की कंडीशन में है, इज देयर एनीबॉडी इन दिस ग्रुप हु कैन एक्चुअली गो एंड डायरेक्टली अप्लाई दिस नॉलेज विद रिलेशन टू योर करंट जॉब? इंशाल्लाह। ठीक हो, हमारे पास टाइम तकरीबन मुकम्मल हो गया है। सनोबर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। बेसिकली अगेन मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे कोट करूँगी कि मैं क्योंकि क्लास नहीं ले पाई स्टार्टिंग से, मैंने मिड से ज्वाइन किया था, लेकिन अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मौजूद हैं उनका फीडबैक सुन करके मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सेशन मिस हुआ है आज का। लेकिन क्योंकि मैं खुद एक कॉमर्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन किसी थोड़ा बहुत मैंने जो है वो इन फाइनेंशियल मैटर्स को देखा है अपने स्कूल्स में भी, तो उसके हवाले से ये जो मतलब आप जो भी मैं जो फीडबैक सुन रही हूँ यहाँ पे लोगों का, ये जो मैंने खुद थोड़ा बहुत सेशन अटेंड किया है, उसको रख करके मैं यही कहना चाहूँगी कि विद इन वेरी लिमिटेड टाइम, बहुत थोड़े वक्त में आपने बहुत सारी चीजें स्टार्ट से लेकर एंड तक कवर कर पाई। जो ये सब बता रहे हैं इस वक्त यहाँ के पार्टिसिपेंट्स कि किस तरह से आपने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप आए हैं, और फिर आप उसके बाद एंड में आप इनकम स्टेटमेंट की तरफ आ गए हैं, आप बैलेंस शीट की तरफ आ गए हैं। तो ये और फिर स्टार्ट कहाँ से लिया हमने, और फिर जो बीच में आपने बताया कि फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों जरूरी है और हमारे पास एग्जाम्पशंस क्यों इम्पोर्टेंस के हामिल होते हैं। So no doubt it would be a wonderful session, inshallah ta'ala. When I will listen to the recording, I would improve myself more about it, and I would definitely improve all these knowledge in my system as well. Jazakallah khair. चलिए मैं कुछ कमेंट्स चैट के अंदर भी पढ़ रहा हूँ। आई एम हैप्पी टू हियर कि मैंने आप लोगों के ये 2 घंटे जो हैं ये वेस्ट नहीं किए, और एक ट्रेनर या मेंटर की यही ख्वाहिश होती है कि मेरे तो 2 घंटे हैं और आप पार्टिसिपेंट्स के तमाम तादाद को 2 से ज़रब दिया जाए तो देयर गोइंग टू बी सेवरल 100 आवर्स, और अगर ये कई 100 घंटे ज़ाया हो जाए और किसी काम के ना हो तो दैट्स अ शेम। और अगर ये किसी काम के हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इसके ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया एक दूसरे से लर्न करने का और इन चीज़ों को अपनी प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाके अप्लाई करने का। This does not stop here with these few slides or with this little lecture. आपके लिए इंशाल्लाह ताला my number will be shared with you guys. You can reach out to me anytime if there's any question that you would like to ask. I'll be very happy to do that. Template जो उस्मान ने कहा इंशाल्लाह ताला हम बना के within few days इसको अपलोड कर देंगे. Please use it even if you are not in the job of making a budget of a school. Just do it for your own learning. मार्केट से नंबर लें, उसके अंदर पंच करके देखें और देखें कि आपकी स्टेटमेंट्स जो है क्या बनती हैं। आई एम वेरी प्लीज, आई एम वेरी हैप्पी कि इतना माशाल्लाह एक्टिव ग्रुप आप में से 90% लोगों ने इंटरेक्ट किया है, सवाल पूछे हैं, वैल्यू ऐड की है, मेरे अपने इल्म में इजाफा हुआ है, एंड आई हैव आल्सो लर्नड हाउ आई वुड इम्प्रूव दिस कोर्स if I have to repeat it again for the next session. Thank you so very much.
and a very good day to you. Allah Hafiz.